Okay, good morning everyone. So this is the fifth lecture for this chapter differentiation. We have already studied the chain rule derivative in detail, and in the last class we have seen some introduction to the derivative of inverse functions, isn't it? We have also done the theorem based on derivative of inverse function. I hope everyone would have understood that, and there was homework of writing that theorem twice, so I hope you would have done that also. So moving ahead, today we will go in detail of the inverse derivative of inverse functions. So as we have seen in the beginning of this differentiation, derivative of some standard functions, right? So similarly we also have some standard inverse functions, okay, whose derivative will be known to us. The proof is also given in the textbook. We will definitely observe proof of 2-3 formulas, but then let अब याद करने के लिए हम उसको एज इट इज याद कर लेंगे फॉर्मूलेस को. सो आप हेडिंग डालोगे डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेटर वी से. Derivative of standard inverse ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस. तो आपके फॉर्मूले के लिस्ट में अब कुछ और 6 फॉर्मूलेज अब ये ऐड हो जाएंगे. नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ inverse function of sine, that is sine inverse x. Okay, then derivative of cos inverse x, then derivative of tan inverse x, and fourth, derivative of cot inverse x. Fifth, derivative of sec inverse x, and sixth, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स. इसके फॉर्मूले इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी हैं, ठीक है. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, कॉस इनवर्स इज नेगेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो यू कैन इजीली मेक आउट कि साइन इनवर्स याद हो गया तो कॉस इनवर्स आ गया, जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट. सिमिलरली tan इनवर्स is 1 upon 1 plus x square. Then cot inverse is minus 1 upon 1 plus x square. Okay. Then we have sec inverse and cosec inverse also. So sec inverse is 1 upon x into root of x square minus 1, and cosec inverse is minus 1 upon x into root of x square minus 1. इन सबको एज इट इज, जैसे हमने डेरिवेटिव साइन का लर्न किया, कॉस का लर्न किया, माइनस साइन, ऐसे ही इन सारे फॉर्मूलेस को हमको लर्न कर लेना है राइट अवे. हाँ, अभी अभी लर्न कर लो, इजी है,
इसमें कंफ्यूजन क्या होगा, बस एक ही कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखो कि वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, इसका हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो आपको याद रखना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन कब आ रहा है, सेक और कोसेक में। तो एक्स पहले रूट के अंदर कब होगा, जब रूट के बाहर एक्स होगा, ऐसा कुछ लॉजिक सेटअप कर लो। अगर एक्स बाहर होगा तो ही अंदर एक्स से स्टार्ट होगा। अब मुझे मालूम है वो तो सेक और कोसेक में होता है, यानी साइन आएगा तो उसमें एक्स स्टार्ट में नहीं होगा, सेकेंड टर्म होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा आपको याद रह जाएगा कि ओके ठीक है, ऐसा हम लोग याद रखेंगे। एक्स रहेगा तो ही रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म पहले होगा। तो साइन कॉस टेन कॉट में ऐसा होता नहीं है, तो वन पहले रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले लिख लो और अभी का अभी लर्न कर लो राइट नाउ फास्ट। Let me know if you have done by hearting this 6 new formulas. Okay, so I think the majority of you have learned it. Now students, don't you think all these formulas are the fundamental formulas, standard formulae? Because everywhere it is sine inverse x, cos inverse x. Do you remember? Tan inverse x. So the next question will be, sir, can we apply the chain rule of derivative here also in case if we have something other than x? So definitely the answer is yes, you can. For example, अगर suppose यहाँ पर आता है sine inverse of log x, for example. So definitely I can go ahead with this formula. I can apply the chain rule. तो पहले तो वो दिख रहा है sin inverse something, तो वो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स के जगह, एक्स की जगह क्या था लॉग, तो वो हो जाएगा 1/√1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, एंड दैट विल बी द 1/x, the derivative of log x in the next step. Are you all understanding this, what I'm trying to say? That you can apply chain rule if x is replaced by some other functions. Fine. So let me just go back to the textbook and show the proof of all these theorems. Okay. Because ऐसे तो हम लर्न कर लेंगे, बट ये पर्टिकुलर रेंज के लिए ये फॉर्मूला होता है. So that is why I'm going in the textbook now. Okay. So as you can see here, derivative of standard inverse trigonometric functions. I'll just increase the font size a bit. Yeah. So you can see here, if y is sine inverse x, right, where x is lying between -1 and 1, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए x, और y is always between -90 to 90. So for this particular range, dy by dx will be
1/√1 minus x square. एंड हियर ऑल्सो दैट x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से लेस नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर वो 1 से लेस हो जाएगा, राइट, तो व्हाट विल हैपन? यस, तो वो ये जो रेंज है ना उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. तो फिलहाल ऐसा कोई रेंज का इश्यू नहीं है, आपको बाय हार्ट करके रखना ऐसा नहीं है. हाँ, बट आपको याद रहना चाहिए एक टेबल बना के कि भाई ये कंडीशंस है. हम लोग डेरिवेटिव करने में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट डेफिनेटली व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, there you will have to be very much careful about this range also. Okay, so let's see how do we prove it. So y equal to sin inverse x है, ठीक है. फर्स्ट स्टेप देखो, साइन इनवर्स जिस साइड होता है अगर उसको दूसरे साइड भेजते हैं तो साइन इनवर्स है ना, तो वो दूसरे साइड जाके वो साइन बन जाता है. कॉस इनवर्स से वो दूसरे साइड जाएगा तो कॉस हो जाएगा. यस, तो हैव यू ऑल अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेप? साइन इनवर्स उधर गया तो साइन y इक्वल टू x. प्लीज से यस और नो हियर. फर्स्ट स्टेप, साइन इनवर्स वेंट टू द दिस साइड टुवर्ड्स द y, सो इट बिकम साइन y इक्वल टू x. अब ये तो नॉर्मल फंक्शन आ गया है, ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बट आई विल बी डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ y. अभी तक क्या होता था, y इज अ फंक्शन ऑफ x होता था. अब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो क्या होगा, x का हो जाएगा dx बाई dy और साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y. विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं. यस, ओके. नाउ हम लोग ने देखो, अगर मुझे किसी को जबरदस्ती रूट में लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, यस, उसको स्क्वायर करके रूट लगा देता हूँ, इजंट इट. a को अगर रूट में लिखना है तो a स्क्वायर करके रूट लिख दूंगा. तो cos y को क्या लिखा, cos स्क्वायर y लिखा और उसका रूट लगा दिया, और रूट लगाया तो दैट इज वाई इट इज प्लस और माइनस. देन cos स्क्वायर y कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर y. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, सो दैट आई कैन ब्रिंग साइन y. ओके, सो साइन स्क्वायर y हो गया. अब साइन y की जगह हमने x पुट कर दिया, तो मुझे फाइनली मिला dx बाई डी वाई is plus minus root of 1 minus x square. Right? But cos y is positive since y lies in first and or fourth quadrant. y का अगर रेंज देखोगे तो वो -90 से 90 है. हाँ, तो अब -90 से 90 मतलब समझो ये ऐसा होता था जब लाइन, तो वो ये तो फोर्थ में होगा या तो फर्स्ट में होगा. तो फोर्थ में भी cos पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में भी cos पॉजिटिव होता है. तो मैंने क्या ले लिया, dx बाई डी वाई को पॉजिटिव ले लिया. पॉजिटिव नेगेटिव लिखा था, बट सिंस cos y है ये, cos y तो उसमें पॉजिटिव होता है, तो वी हैव टेकन पॉजिटिव. एंड देन वी हैव यूज दैट थ्योरम. हमको तो y का डेरिवेटिव निकालना था ना, dy बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स होगा रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई डी वाई. उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आंसर आ गया. ये हो गया साइन इनवर्स x का. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अब cos इनवर्स में क्या आएगा, वो आपको देखो एज होमवर्क वर्क फॉर स्टूडेंट टू प्रूव, तो ये आपको खुद से प्रूव करना है. हाँ, तो प्रैक्टिस के लिए सारे थियरम्स का प्रूव कर लोगे स्टूडेंट. बहुत ही सिंपल है. देखो कॉट का भी क्या किया है, कॉट को पहले इधर लिया, कॉट वाई हो गया, फिर वापस डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, गेट द आंसर. सो हार्डली दे हैव आल्सो सॉल्व 2 और 3, तो बाकी की चीज आप कर लोगे. हाँ, मैंने आपको एक बता दिया कि कैसे आपको प्रूफ करना है, सो यू हैव टू मैनेज दैट. ऐसे अभी तक तो प्रूफ आया नहीं है, बट देन इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, सो वी कांट इवन डिनाई आल्सो दैट इट कैन नॉट कम. बट अभी तक तो नहीं आया, तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना. हाँ, इसको यहाँ पर कंसोलिडेट करके लिख दिया है रेंजेस के साथ. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो मैंने बताया चेन रूल, x की जगह fx आएगा तो अप्लाई करने का सेम रूल, बट देन डेरिवेटिव ऑफ fx भी मल्टीप्लाई करने का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इनवर्स फंक्शन. सी द फर्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. जब कभी भी आपको साइन इनवर्स होगा और अंदर
साइन इनवर्स के अंदर साइन ही होगा, तो दिस साइन इनवर्स साइन गेट्स कैंसल्स ईच अदर एंड द आंसर रिमेन्स थीटा। सपोज साइन बाहर है और साइन इनवर्स अंदर है तो भी ये रिजल्ट ट्रू है, साइन साइन इनवर्स कैंसल, एक्स बच जाएगा। There's a question, sir, are the conditions important? I said in solving problem, you know, in 12th standard कहीं भी problem नहीं आएगा, even if you don't remember the conditions, but those who are preparing for entrance examination, they may need to, you know, remember it. Okay, so sine inverse sine is clear. Similarly, this happens in cos inverse also, tan also, cot also, sec also, cosec also. Please let me know if you have understood the first 6. Please let me know. It is exactly in the same way, right? इनवर्स और अंदर सेम फंक्शन है। हाँ, इनवर्स इनवर्स नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन, कॉस है तो कॉस इनवर्स, समथिंग लाइक दैट। ओके, ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट 7th वन, सपोज साइन इनवर्स के अंदर कॉस आया। अभी साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन आता तो हम उसको कैंसिल कर सकते थे, बट अब तो ये कॉस आ गया, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल तो नहीं हो सकता, तो कैन वी कन्वर्ट कॉस इनटू साइन? तो हमने अलाइड एंगल में पढ़ा था ना कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, डू यू एग्री? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया साइन 90 माइनस थीटा, एंड वंस वी रिसीव साइन, तो साइन इनवर्स साइन गेट्स कैंसिल, तो आंसर इज 90 माइनस थीटा। सिमिलरली 8th में साइन को कॉस 90 माइनस थीटा लिखा, कॉट को tan 90 माइनस थीटा लिखा, tan को cot 90 माइनस थीटा लिखा। Yes, understood the next 4, 7, 8, 9, 10. इलेवन 12 ऑल्सो कोसेक था तो सेक 90 माइनस थीटा किया, और सेक था तो कोसेक कर दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट नाउ साइन इनवर्स एक्स। Many students, they feel sin inverse x is 1 upon sine. No, it is this sine raised to -1 is not a raised to -1. a raised to -1 होता है तो हम उसको 1 upon a लिखते हैं, वो अलजेब्रा है। यहां पर साइन इनवर्स एक सिंबल है, ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है -1 वाला, ठीक है? ये मैंने पहले भी बताया आपको, राइट? सो साइन इनवर्स एक्स can be converted into cosec inverse x, cosec inverse, बट उसके लिए एंगल का रेसिप्रोकल करने का, 1 अपॉन लिखने का नहीं कि 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोसेक, नो, साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स कर दिया, बट एंगल जो भी होगा, सपोज साइन इनवर्स है a बाई बी, तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा b बाई ए। सिमिलरली अगर कोसेक इनवर्स है तो वो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो सकता है रेसिप्रोकल लेके। Cos inverse can be converted into sec, sec can be converted into cos, cot can be converted into tan, and tan can be converted into cot just by taking the reciprocal of the angle. Have you understood from 13 to 18 now? That's great. 19, 20 and 21 is a result that we need to remember as it is. That is sine inverse x cos inverse x. So if you add sine inverse cos inverse two functions, provided that the angle x is same, then the answer is pi by 2. It is a result, we have to just remember it without proof. Similarly, tan inverse x plus cot inverse x is also pi by 2. Sec inverse x plus cosec inverse x is also pi by 2. We have to just remember sin inverse cos inverse का रिलेशन है, बीच का जो एंगल है वो x सेम होना चाहिए। tan इनवर्स cot इनवर्स का रिलेशन है, ऐसा ना हो जाए tan इनवर्स है sin इनवर्स किया तो भी पाई बाय 2 लिखा, नहीं, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स एंगल सेम पाई बाय 2, sec इनवर्स x cosec इनवर्स x एंगल सेम पाई बाय 2। ओके, नाउ sin cos किया, tan cot किया, sec cosec किया, प्लस में tan प्लस tan होगा डिफरेंट एंगल्स में, तो क्या करेंगे, tan प्लस tan, so this is the formula. Yes, tan inverse x plus tan inverse y can be written as single tan inverse
बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस करो, नीचे माइनस, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस करो, नीचे प्लस करो, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हाँ, एंड वैसा वैसा उल्टा भी समझना है, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। यस, अंडरस्टूड द लास्ट फोर ऑल्सो, 5 90 20 21 22 23। ओके फाइन। ओके, सो इफ यू हैव टेक्स्ट बुक यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग। मैं भी यहाँ पर आपको विजिबल कर देता हूँ सारा फॉर्मूला। सो हेडिंग डाल दो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंड राइट वन बाय वन। और लर्न भी करते जाओ उसको, लाइक लर्न तो इसमें कुछ करना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो जस्ट राइट डाउन ऑल द 23 राइट नाउ। Yes, Jayashri, no formula for cot inverse x plus cot inverse y. Okay. Yeah, good question, Krish. But the question is not in everyone. Your question should be visible to all. Sir, tan inverse formula, can we write sin inverse upon cos inverse? Again, why you are thinking about tan inverse as sin inverse upon cos inverse? Yes, because it's tan. And you know that tan theta is sin theta upon cos theta. Stick to the formula. Na? Tan theta रहेगा तो. It is not tan theta at all. It is tan inverse theta. So we cannot write it as sin inverse upon cos inverse. Okay. Only if it is tan, then only. Then you will say, sir, tan square में तो लिखते हैं ना कि sin square upon cos square. तो बस मैं वही बताना चाहूंगा कि ये tan रेस टू -1 थोड़ी ना है कि आप लिख सकते हो इसको। ये समझ रहे हैं मेरा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन? tan स्क्वायर होगा तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिख सकते हैं, बट मैंने बताया ना ये -1 मैथ वाला -1 नहीं है, रेस टू -1 वाला नहीं है, ये सिंबल है। इनवर्स ऑफ साइन का सिंबल है साइन रेस टू -1 x। इनवर्स ऑफ tan का सिंबल है tan इनवर्स x। ओके, सो वी कैन नॉट राइट। कंटिन्यू। Please put your question in. Please put your question in everyone. Patel Manoj is asking, sir. So in third formula we can ना? थर्ड फॉर्मूला में वी कैन मतलब कि थर्ड फॉर्मूला तो tan इनवर्स tan वाला है, उसमें तो tan इनवर्स tan कैंसिल ईच अदर। उसमें क्या करना है? उसमें क्यों करोगे साइन अपॉन कॉस? ओनली tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, बट करना ही क्यों है? बाहर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स tan तो कैंसिल हो जाता है।
तो वो उस वे में सोचना ही क्यों है कि tan को sin बाई cos लिखो. Please let me know if you have done with all 23 formulas. Okay, I'm waiting. Okay. 19th, 19, 20, 21, you have to just, as a result, you have to remember साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है. टैन इनवर्स कॉट इनवर्स ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 होगा. सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स पाई बाय 2 होगा. इट्स अ रिजल्ट. मैंने उसका कोई प्रूफ नहीं दिया वो कैसे 90 आया, नहीं पाई बाय 2 आया. हमको एज इट इज रिजल्ट को लर्न करके रखना है. ओके.
Okay, so everyone have done it. Okay. Now there are some important substitutions also that we need to understand. अब ये क्यों करेंगे सब्स्टिट्यूशन, वो सब हम सम्स में देखने वाले हैं, बट अभी फिलहाल जैसे हम नोट्स बना रहे हैं तो उसको एक सिस्टमैटिक वे से सारे कंसेप्ट लिखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. नाउ ये सारे सब्स्टिट्यूशन के पीछे का जो लाइक मेन अपना गोल है वो ये है कि जैसे ये रूट के जितने भी टर्म्स हैं, सो रूट के जितने भी टर्म्स होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन का एक ही मेन गोल है कि वो रूट निकलना चाहिए. तो ऐसा कुछ मैं अप्लाई करूं कि रूट निकल जाए. तो जैसे देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो मुझे मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर. तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना. तो देखो सब्स्टिट्यूशन क्या लिखा, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा. यस, अंडरस्टैंडिंग. साइन थीटा पुट करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का और रूट कैंसिल हो जाएगा. कॉस पुट किया तो साइन में मिल जाएगा. यस. सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला आई थिंक वहां पर कुछ मिस्टेक है. रूट ऑफ 1 प्लस होना चाहिए ना यहाँ पर. अच्छा, यहाँ पर प्लस वाला लिखा हुआ है, हाँ तो ठीक है. बट ये दोनों प्रॉब्लम है क्योंकि इसके फॉर्मूले रॉन्ग हो गए ना. देखो 1 प्लस थर्ड वाला देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें अगर मैं tan पुट करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा ना, क्योंकि सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, इजंट इट. 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, राइट. तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा. ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला है, इसको पहले लिख दोगे और उसका सब्स्टिट्यूशन होगा एक्स टैन थीटा और कॉट थीटा. और ये वाला जो सेकंड है वो रॉन्ग है, उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखना चाहिए था. तो एक काम करो, आप ये पहले टेबल बनाओ, एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन, 2 कॉलम बनाओ. पहला कॉपी कर लो, पहले फर्स्ट कंप्लीट कर लो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर मैं उसके नीचे का बताता हूँ. यस, फर्स्ट हो गया. सेकेंड लिखोगे आप लोग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. जो थर्ड है उसको सेकेंड लिखोगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड उसमें सब्स्टिट्यूशन में लिखोगे x इक्वल टू टैन थीटा और x इक्वल टू कॉट थीटा. x इज इक्वल टू टैन थीटा और x इज इक्वल टू कॉट थीटा. थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूले में लिखोगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, उल्टा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज टैन स्क्वायर होता है सेक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1. सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसका फॉर्मूला का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा x इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा. ये सबको ये पहले 3 समझ में आ गए. ओके. थर्ड वन a प्लस एक्स ए माइनस एक्स. अभी यहां पर अगर मुझे रूट निकालना है तो पहला तो ये जो a है वो कैंसिल होना चाहिए. सो x की जगह जो भी सब्स्टिट्यूट करूंगा उसमें a रखूंगा, सो दैट
ए कॉमन लूंगा तो ऊपर और नीचे से ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा. So there is an option you can put x equal to a cos 2 theta. क्यों ऐसा पुट करने पर क्या फायदा होगा सोचो. ट्रिगो का फंक्शन अगर आपको याद है तो a प्लस ए कॉस टू थीटा अगर मैं पुट करूंगा a कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस कॉस टू थीटा का तो फॉर्मूला है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा. राइट. तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे. थर्ड मैंने क्या बताया रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. तुम खुद सोचो ना अगर आपने लिख लिया है जो सब्स्टिट्यूशन मैंने बोला है सोचो एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिलेगा क्या वो सॉल्व होगा क्या. रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स की जगह सेक पुट करोगे तो सॉल्व हो जाएगा ना क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर होता है. ओके. तो you all just make a note of all these formulae. ये सारा सब्स्टिट्यूशन एज इट इज लिख लो. ठीक है. अब यहाँ पर जो राइट में है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें tan पुट किया. क्यों 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये इजी हो जाता है ना फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा. ये तो किसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. कम ऑन. किसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. वेरी गुड प्रिया साइन 2 थीटा करेक्ट. थर्ड देखो सॉरी उसके नेक्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan पुट कर दिया 1 minus tan square upon 1 plus tan square. This is the formula of cos 2 theta. ऐसा एक्सप्रेशन है तो उसमें साइन पुट किया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला एंड सो ऑन. ओके. सो यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. जब सब्स्टिट्यूशन आएगा वो सेक्शन क्वेश्चन का तो उसमें हम और वापस एक बार रिवाइज करके फिर इसका यूज करेंगे. So just make 2 columns and write down everything here.
Is it done, everyone? Okay, I think it's done now. You can see the proof of sine inverse x plus cos inverse x pi by 2 here in this page. Okay, so let me just go through quickly how to prove that they are, sine inverse plus cos inverse x is pi by 2. I am assuming let the left hand side fx is a function sine inverse x plus cos inverse x. We have to prove it is equal to pi by 2. So we will differentiate this. तो fx का डेरिवेटिव होगा f dash x. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और कॉस इनवर्स का नेगेटिव होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो एग्जैक्टली सेम टर्म आ गया, वो कैंसिल हो गया. इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या हो गया? जीरो हो गया. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, किस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है? यस, कांस्टेंट. तो अगर इसका डेरिवेटिव करते और जीरो आता है, इसका मतलब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, ये जो एफ एक्स है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है. So let fx is a constant function c. So for any value of x fx, इसका जो डेरिवेटिव है वो c, मतलब जो फंक्शन है वो c ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा. So conveniently we can choose x equal to 0 from 1 and then we get, अगर मैंने x equal to 0 पुट किया यहाँ पर, हाँ, क्योंकि क्या मुझे पता चल गया कि fx जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. यानी मैं x में 100 पुट करूँ, x में 200 पुट करूँ, x में कुछ भी पुट करूँ, वो एक फिक्स कांस्टेंट आएगा. सो व्हाट इज दैट कांस्टेंट? वो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए मैंने x की जगह 0 पुट किया. तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी, साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0. साइन इनवर्स 0 इज 0, कॉस इनवर्स 0 इज 90. इनवर्स का मतलब कैसा होता है कि साइन का कौन सा वैल्यू 0 देता है, कॉस का कौन सा वैल्यू 0 होता है. तो साइन 0 ही 0 होता है, बट कॉस 90 0 होता है. तो 0 प्लस 90 90 आ गया. सो वो जो कांस्टेंट है वो डिफाइंड हो गया कि वो कांस्टेंट और कोई नहीं, पाई बाई 2 आएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? Okay. So this is a small proof. It is given in the textbook also, so we can manage that. So now these are all solved examples. After doing the exercise, you can just go through all the solved examples. So many questions are solved here. As you can see,
And now this is our exercise 1.2, which we are going to solve. This entire exercise is based on inverse function only. Okay. So चलो heading डालते हैं, exercise 1.2 now. Exercise 1.2, all of you take out the textbook. The question is find the derivative of y equal to fx using the derivative of inverse function x equal to f inverse y in the following. Okay, so ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है. Question number 1. First, we have given with y equal to root x. ठीक है? And we have to find the inverse function of y. So what first step we will do is we will convert them in terms of x now. The root will come here. So then it will become x is equal to y square, first step, right? And now I will differentiate this with respect to y. Yes. Or what can I do is I can write in terms of inverse also here. So better it is if I differentiate and then I can use the reciprocal wala concept जो theorem हमने किया है. So now I'll differentiate, but important is now it is a function of y. So I have to differentiate it with respect to y. So here I will get dx by dy, y square का डेरिवेटिव 2y, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है तो चेन रूल नहीं होगा, डायरेक्टली y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा. ठीक है. एंड नाउ उसके बाद तो हमको मालूम है कि वी नो हमको तो y का इनवर्स फाइंड करना था ना, डेरिवेटिव फाइंड करना था. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई. ठीक है. वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई इज 2y एंड y इज रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स. आप बोलोगे सर हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लिया रहता, तो हमने डायरेक्टली लिखा रहता है ऐसा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 2 रूट एक्स डायरेक्टली मिल जाता ना अपने को. यू आर राइट, बट in the question it is asked us to do like this कि use x of f inverse y. देखो क्वेश्चन पढ़ो, हमको x इक्वल टू एफ इनवर्स y में कन्वर्ट करके dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी हमको इसी वे से सॉल्व करना है. आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? So we did in this manner. Okay, let me do few more problems of this type. So second one, उसमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ x. तो पहले तो उसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले ये बड़ा वाला रूट इधर आएगा, तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स, फिर माइनस रूट एक्स इधर आया प्लस रूट एक्स, वाई स्क्वायर को उधर भेजा माइनस वाई स्क्वायर,
and then this root will again go that side, so it becomes whole square. So 2 minus y square का होल स्क्वायर, ये अब अपना नॉर्मल फंक्शन हो गया. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y. So differentiating with respect to y, so this will be dx by dy equal to, देखो ये पहले दिख रहा है समथिंग रेज टू n, तो वो होगा 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का पार्ट समथिंग 2 माइनस वाई स्क्वायर. इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव जब हम करेंगे इसका 2 माइनस वाई स्क्वायर का, तो वो क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का होगा -2y. इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 और ये -2 विल बी -4y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर. ये आपका आ गया dx बाई dy. एंड अगेन द सेम थियरम, वी नो दैट by inverse trigonometric functions. Yes, I will write it on the right side. So therefore dy by dx, this is a theorem, is 1 upon dx by dy. Substituting, so it will be 1 upon -4y -4y 2 minus y square. Now just replace y का जगह जो था वो लिख दो. तो क्वेश्चन में था y के जगह वो रूट वाला पूरा टर्म ना, तो हमको उसको एज इट इज लिख देना है. So it will become 1 upon -4 इंटू वाई है रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स इंटू वाई. ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस वाई स्क्वायर. तो 2 माइनस वाई स्क्वायर मतलब पहले तो रूट में आएगा 2 माइनस रूट एक्स और उसका भी होल स्क्वायर. होल स्क्वायर नहीं है, क्या है, 2 माइनस रूट एक्स का रूट, बट ये वाई स्क्वायर है तो इसके लिए हम यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देंगे. राइट, होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, समझ रहे हो ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो रहा है. Sir, why did you write? I will not explain that. You think why I've written that? अरे I told ना, I am resubstituting the value of y. तो क्वेश्चन में देखो y का वैल्यू क्या है, यही तो है ना y का वैल्यू. तो बस y की जगह y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं. लुक एट हियर नाउ. सो एंड फिर उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो सेम ही टर्म बचेगा, -4 2 माइनस रूट एक्स. इधर तो कुछ सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, ये y निकाल देता हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड y ना. -4 इंटू वाई. देन अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ 2 माइनस विल गो इनसाइड because now root gets cancelled, so minus can go inside, so it will be -2 and then plus root x. Right, so now your final answer is, ये 2 कैंसिल, रूट एक्स को आगे लिख लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स. करेक्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, समझ में आया ये कैसे हमने किया. चलो इसको नोट कर लो.
फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉब्लम दोनों को। लेफ्ट में है ना फर्स्ट प्रॉब्लम। So that side last answer is dx by dy. Which side last answer is dx by dy? क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, लास्ट आंसर dy by dx ही है ना। सी dx by dy हमने फाइंड आउट किया, बट आफ्टर फाइंडिंग दिस dx by dy हमने लिखा ना dy by dx। अदर साइड आई एम नॉट गेटिंग इट। एक मिनट। dy by dx is 1 upon dx by dy, then I substituted। अच्छा, मैंने dx by dx लिखा है, ओके सॉरी, यहाँ पर। हाँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक, करेक्ट। चलो, so now start doing it। Do the first one first and then start the second one। Okay, I think it's done now।
So now for the remaining questions, I'll be just giving you hint. X में कन्वर्ट करके दे दूंगा, उसके बाद आपको खुद से करना है, ठीक है? तो whenever the question is like this, that you have to convert them using inverse. अगर आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो फिर आपको इस वाले मेथड को फॉलो करना है. Fine. Okay, so let me do the next problem now. सो देखो, स्टेप्स क्लियर है. y में फंक्शन रहेगा, उसको x में फाइंड आउट करो. x में फाइंड आउट करने के बाद उसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो. यू विल गेट dx by dy, and then using inverse theorem dy by dx is 1 upon dx by dy. उसमें सब्स्टिट्यूट करो और y के जगह वापस बैक सब्स्टिट्यूट करो. दैट्स ऑल. मैं आपको बस x में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ. तो क्यूब रूट इस साइड आएगा तो क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर आता है, वैसे ही. और फिर -2 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो x का वैल्यू हो गया y क्यूब प्लस 2. एंड आई थिंक देन यू कैन मैनेज द रेस्ट. ओके, फोर्थ वन, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1. अब इस लॉग को उस साइड भेजना पड़ेगा. सो कभी भी लॉग जब उस साइड जाता है तो e रेस टू के पावर में आ जाता है. क्यों? बिकॉज लॉग का बेस e है. सो इसको लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल जब कन्वर्ट करते तो वो e इधर आ जाता है इस तरीके से, और ये y पावर में चला जाता है. यहाँ से लॉग निकल जाता है और यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, तो जिसने लॉग पढ़ा होगा उसको ये मालूम होगा. नहीं पढ़ा है तो आप याद रखो कि लॉग को कभी भी शिफ्ट करोगे ना, तो जिधर शिफ्ट करोगे वहां पर e टू द पावर वो नंबर आ जाएगा. जो भी यहाँ पर होगा उसमें वो e के पावर में चला जाएगा. अब उसके बाद -1 को इधर भेजा तो e रेज टू वाई प्लस 1 इज 2x. तो फिर x क्या हो जाएगा, इससे x हो जाएगा e रेज टू वाई प्लस 1 अपॉन 2. एंड देन सॉल्व. फिफ्थ वन, दैट्स तो वेरी सिंपल, y इक्वल टू 2x प्लस 3. तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, y माइनस 3/2. डायरेक्टली लिख सकते हो आप, बहुत ही ईजी था वो. 6th वन नाउ, ये है y इज इक्वल टू ई रेज टू x माइनस 3. तो पहले तो 3 को भेजेंगे यहाँ पर, तो अपने को मिलेगा ई रेज टू x इज y प्लस 3. अब क्वेश्चन आएगा कि हम x को निकालना, ई को कैसे भेजे. तो सेम लॉग का उल्टा हो गया. जब लॉग होता है वो उस साइड जाता है तो ई आता है. अब ई को उधर भेजेंगे तो इस साइड y आ जाएगा, सॉरी लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ y प्लस 3. वही बात हुआ ना, देखो उल्टा करोगे तो अगर लॉग को निकालना है तो ई रेज टू एक्स हो जाएगा. तो हो गया x का वैल्यू. एंड नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट dx by dy, फिर dy by dx एंड सो ऑन. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. ओके, 7th वन नाउ, वहां पर है y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस 3. ठीक है, तो पहले तो मुझे इस e को ही निकालना पड़ेगा. तो log ले लिया मैंने इस साइड, log y ले लिया तो इधर 2x माइनस 3 बच गया. isn't it? And then -3 will shift this side, so it will be log y plus 3 is 2x. So x will be log y plus 3 divided by 2. हो गया. And now the last one, 8th one, that is
y is equal to log of x by 2 to the base 2. Here also we'll have to shift the log. तो जब log का base नहीं होता था तो we used to assume base as e, so we used to get e to the power of something. Now base is given, so that base will come here. So it will become 2 raised to y, and then log will go off, and then it will be x by 2. 2 को उधर भेज देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 raised to y into 2. into 2 मतलब ये 2 raised to 1 है, तो 2 raised to something into 2 raised to another thing, तो पावर गेट्स एडेड ना, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 2 raised to y plus 1. So I have helped you out to simplify the things, right? हो जाएगा मैनेज ये? Okay. So this is the entire question. Question number 1 you will be doing as homework. Question number 2 also I'm giving you hint, that is also the same, not exactly this type, but another way of finding the inverse. Question number 2 में देखो, रीड करो क्वेश्चन क्या लिखा है. Find the derivative of inverse function of the following. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है कि पहले x का कन्वर्ट करो और फिर उसका डेरिवेटिव करो फिर उसका, नहीं, डायरेक्टली इन्वर्स करना है. तो मैं एक बताता हूँ आपको कैसे करना है. देखो क्वेश्चन में लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू एक्स. इसका इन्वर्स करना है. मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय डी एक्स, राइट? dy बाय डी एक्स. तो इसका इन्वर्स क्या होगा? dx बाय dy. दैट इज व्हाट इन्वर्स इज ना, रेसिप्रोकल, राइट? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे मालूम है? सेकेंड क्वेश्चन में जैसे हमने पहला एक्सरसाइज किया ना, पहले हम dy बाय डी एक्स फाइंड आउट करेंगे. ये तो एक्सरसाइज 1 हो गया ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. जस्ट अ मिनट. हाँ ओके. सो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? तो u v लगेगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, दैट इज ई रेज टू एक्स, प्लस e raised to x common, then derivative of x square, that is 2x. We can see here x is common from both the term, e raised to x is also common, so I think here x will be left and here 2 will be left. This is your dy by dx. Okay, and now I will use the inverse function. Okay, so I will write the derivative of inverse function of y, the derivative of inverse function of y equal to fx is given by, किससे होता है? y का इनवर्स विल बी dx by dy, और by theorem dx by dy is 1 upon dy by dx. So just substitute there. हेलो स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक इट्स वेरी सिंपल? हो गया आंसर. यानी सब क्वेश्चन में हमको dy बाय dx निकालना है और बाद में क्या करना है? हमको उसका इनवर्स के लिए dx बाय dy निकालना है. दैट वी विल गेट इट बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल. तो ये सारे फंक्शंस आप देख सकते हो. आई विल शो यू द टेक्स्ट बुक. हाँ, ये सारे फंक्शंस का ऐसा टाइप का डेरिवेटिव हमने किया हुआ है. यस, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो आई एम गिविंग यू हिंट. 3 देखो क्या लिखा है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, यानी क्वेश्चन तो 2 जैसा हो गया. ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट. तो बस इसमें जो जो किया ना वही करना है. लास्ट में एक पॉइंट ऐड करना है. कैसे? देखो, पहले आप dy बाई dx निकालोगे, फिर dx बाई dy निकालोगे. जब dx बाई dy आ जाएगा x के टर्म में, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर dy बाई dx बाई dy एट x इक्वल टू 1. ये समझ रहा है क्या आपको? जैसे अगर मैं पीछे क्वेश्चन में गया
और मुझे इसी क्वेश्चन में बोला जाता है एट x इक्वल टू 1, तो मैं क्या करता, तो आफ्टर गेटिंग dx by dy आई वुड हैव रिटन हियर देयरफॉर, ये ऑप्शनल है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बट मैं अगर मैंने मुझे x इक्वल टू 1 लिखा रहता तो मैं लास्ट स्टेप में लिखता dx by dy x इक्वल टू 1, उसमें जहां भी x है वहां पर 1 पुट कर दूंगा, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, ये तो e, तो ये हो गया, आंसर हो गया 3। समझा क्या सबको? एवरीवन कम ऑन। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक एक्स्ट्रा वाला स्टेप पहले नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, पहले हमें dy by dx निकालेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करके dx by dy, वो सॉल्व होने के बाद फिर उसमें वैल्यू पुट करना है। क्लियर एवरीवन? These are all simple questions, so I'm giving you as a homework, okay? Fine then. Next question, सेम है, क्या लिखा है? सिंबल में थोड़ा वो डराने की कोशिश कर रहा है, एफ इनवर्स करना है, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव, ठीक है, एफ इनवर्स का डैश, तो पहले तो हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट विल बी एफ डैश एक्स, वही है तो डी वाई बाई डी एक्स, राइट, वही डी वाई बाई डी एक्स है, और ये क्या है? डी एक्स बाई डी वाई है, इनवर्स का डेरिवेटिव, तो वो क्या होता है? 1 dy by dx। तो इस सिंबल में हम लिखेंगे कैसे? पहले इस एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, फिर लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई, कोई फंक्शन होगा ना वाई, वो क्या होगा? 1 एफ डैश एक्स। और अगर आपको नहीं समझा तो इसको dy by dx ले लो, इसको dx by dy ले लो, और क्वेश्चन नंबर 3 जैसा सॉल्व कर लो, बस dx by dy निकाल के 0 पुट कर दो, बस हो गया आंसर, ठीक है? ओके, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज π/2, उसका प्रूफ बताया है, वैसा ही ये दोनों का प्रूफ है, तो पहले उसको गो थ्रू करोगे और 5th क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है? दैट्स ऑल, 6 ऑनवर्ड्स आई विल बी डूइंग इट इन द क्लास। सो 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सारे क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एज अ होमवर्क, ऑल द क्वेश्चंस, एंड टू बी अपलोडेड इन द गूगल क्लासरूम आफ्टर स्कैनिंग इट। इजंट क्लियर? हाँ, if you fail to do it, I will not take you in the class, as you all know. Time limit is before my lecture, okay? So most probably I don't have any other lecture now in this week, I think. So maybe you have 4 or 5 days then, if my lecture is on next Monday. Okay, students? Fine then. Do you have to write anything here from this? This question I had done, but this is simple. I think this is manageable. Fine then. Thank you very much. Chalo, bye bye. Take care.